अरे वाह, रोशनी बाना भी आ गया। रोहिंटन, रुस्तम, किधर है सब लोग? Jai Baba Sam uncle, we can start. Yeah. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Janice, could you do the prayer, please? जी। अवतार मेहर बाबा की जय। Yeah. Am I audible, uncle? Yes. Go ahead. जय बाबा। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक व अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Meher Baba, everybody. Welcome Jai to Baba. the Thursday program. So nice to see you all. Last time I'd seen you all was on the bus trip, and now I see you all here. Yep. It's nice. Rustam Dotiwala and I shared a room also. So those are memories. Now, Photographs are very good. Aji? Photographs are quite good. Yeah. Now, before I begin, I would like to invite our one and only Lord Meher Baba. Because without him, nothing ever happens. So I would like him to join us during our meeting. Not only just join us, but to take over the entire proceedings of this meeting and let every word spoken be according to his will. Thank you, Baba. Thank you. Today we've got a speaker lined up. Her name is Amrapali Kamble. She's from Nanded. And she is a makeup come Mehndi artist by profession. She is also from the Youth Savas. But somehow or the other, we are having problems connecting to her. So until she comes, the floor is open. If anybody wants to say anything, please feel free to do so. किसी को कुछ बोलना है? Okay.
Uh, I would like to begin with a couple of points. The first point being the need to come to the center. I know most of you feel very comfortable in your homes and think it is a waste of time commuting to and fro, etc., etc., etc. This is my personal feeling, and I may be wrong, I may be right. Baba alone knows that, but I feel that the most important place in our lives, as far as Meher Baba goes, is the Samadhi and the other areas around Mehrabad and Mehrazad connected to the Lord. Now that we are not in Mehrabad or Mehrazad, to me, the second most important place is the center. I say this because of several reasons. बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि बाबा हर जगह पे है, हम घर में भी बैठ के उनको याद कर सकते हैं. Sure, there's no doubt about that. But यहाँ का जो माहौल है, सेंटर का जो एक तरह से इतने सालों की एग्जिस्टेंस, इतने सालों की बाबा की प्रेयर्स एंड आरतीज हुए हैं, इतने सालों के जो भी कुछ वाइब्रेशंस हैं, they are very, very powerful, and also they are very important for all of us. हमें पता नहीं हम कैसे भी हमें पता नहीं कि हम कैसे उनको नाप सकते हैं. Mr. Behram Surti has just walked in from Dubai. What has he got? Kit Kat. Arey wah. Jai Baba. Now, I would like to narrate a small incident which happened in a home in London, England, UK. Amrapali aa gayi? Amrapali, are you on? Yes, uncle, she has joined. Jai Baba Amrapali. आपका अनम्यूट कीजिए. आम्रपाली. हाँ आ रही आवाज. जय बाबा. जय बाबा. आपका ऑडियो वीडियो दोनों ऑन कीजिए प्लीज. ओके ओके. आय शाबाश. जय बाबा. देर सॉरी आए थोड़ा सा दुरुस्त लेट हो आए. गया. ओके. So everybody, this is Madam Amrapali Kamble. हाँ. She's from Nanded, and she is a makeup artist come Mehndi artist. And बाबा परिवार में बहुत सालों से है. जैनिस ने उनको अपने सहवास में मिली थी, वहां से उनके रिलेशंस हो गए थे, तो आज वो हमारे सामने बात करेंगे. Firstly, I would like to find out from her the importance of the place called Nanded. क्या आपको मालूम है कि ये सिख यानी सरदार जियों की सेकंड इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है? हाँ सर. हाँ हाँ. बोलिए आप जरा बोलिए बराबर हो सके. हाँ जय बाबा.
मैं नांदेड़ से हूँ, मतलब ये सरदार अमृतसर का जो फर्स्ट है गुरुद्वारा, ये सेकंड वाला है, जहाँ पे 1970 में आप जरा सिखों के जोर से 10। बोलिए, वॉल्यूम ऊपर कीजिए। हाँ, हम सब बहरे हैं यहाँ पे। अच्छा। 1970 में सिखों के 10वें जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे उनके एक घोड़े दिलबाग के साथ जो आए थे उन्होंने, तब उनका अंतिम सांस यहीं पे लिया था। और उनका जो गुरु ग्रंथ यहाँ से, मतलब उन्होंने गुरु ग्रंथ का जो यहाँ पे सबको उन्होंने लास्ट ये किया था, लास्ट अंतिम स्थान यही था उनका, 10वें गुरु का, गुरु गोविंद सिंह जी का। और बाबा यहाँ पे 19 नवंबर 1991 में यहाँ पे आए थे बाबा, अच्छा। गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए। हाँ, वहां पे बाबा ने आरती वगैरह प्रार्थना की थी। और 1938 में बाबा कंधार में आए थे, एक मस्त को मिलने के लिए। और फिर बाद में 3 बार बाबा नांदेड़ में आए थे। अरे वाह। हाँ। हाँ, 3 बार नांदेड़। और बाबा कंधार में एक मस्त को मिलने के लिए गए थे, और उनकी जो यात्रा थी, यहाँ से बैलगाड़ी से चले गए थे बाबा दर्शन के, मस्त को मिलने के लिए। और मैं मेरे बारे में बोलती हूँ अभी। मेरे बाबा प्रेमी 2003 से बने। यहाँ पे एक बाबा प्रेमी थे, और वो मतलब ज्योतिष थे। तो उनके घर पे बाबा का फोटो लगवाया था, तो मैं उनको पूछती थी कि ये कौन है कौन है। उन्होंने कभी बताया नहीं मुझे कि ये कौन है, सिर्फ उनका नाम भी नहीं बताते वो लोग। मैं बोली ठीक है, इनका कुछ होगा, नहीं बताते होंगे। फिर उन्होंने बोलते थे कि आरती प्रार्थना को आ जाओ आप। तो आरती प्रार्थना के लिए भी चले जाती थी। तब मुझे पता चला कि इनका नाम मेहर बाबा है। तो मैं 2004 में बाबा के दर्शन के लिए डायरेक्ट आ गई थी, अमर तिथि के टाइम पे। हाँ, अमर तिथि के टाइम पे आई थी। फिर मैंने दर्शन किया उस दिन। फिर बाद में मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से, मतलब यहाँ से तो चली गई दर्शन लेके। फिर वो थोड़ा सा मुझे अलग, तो वहां पे थोड़ा महसूस हो गया कि बहुत बाबा के नजदीक आया ऐसा लग रहा था वही टाइम पे, 2004 में। फिर 4 में मैं 2006 में आई, नहीं 5 में आई, मैं अकेली आई, घर से अकेली, कोई भी साथ में नहीं था। और फर्स्ट टाइम आई थी मैं। मुझे पता ही नहीं था कि बाहर अकेले कैसे जाना है क्या नहीं। मैं इतने नांदेड़ से नगर तक आई थी, तो मुझे थोड़ा सा शाम शाम हो गई थी, मतलब 6 बज गए थे आने में नगर में। नगर में 6 बजे, तो फिर बाद में वहां पे मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या करना है रहने के लिए, कुछ आइडिया ही नहीं थी मुझे। फिर आने के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम आई, तो मुझे उन्होंने बोला कि तुमने बुकिंग किया है क्या। मैं बोली नहीं किया है, मैंने बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तब उन्होंने बोले कि तुमको यहाँ पे रहने नहीं आएगा। फिर यहाँ पे कुछ तो वहां पे गड़बड़ हो गई थी रहने के लिए, कुछ लड़की की वजह से। तो मैं बोली कि ठीक है, मुझे तो रहने नहीं आएगा। तो मैं रोने लगी, फिर पायरियों पे बैठ के बहुत रोने लगी। फिर बहुत जोर जोर से रोना आ रहा था कि अभी दर्शन भी नहीं होगा, और बाबा के यहाँ पे रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। तो मैं फिर 2 ऑफिस से कोई तो आ रहे थे, 2 जन। तो बोले कि तुम क्यों रो रहे यहाँ पे बैठ के। मैं बोली मैं नांदेड़ से आई। तो मेरा उन्होंने टिकट वगैरह देख लिया। फिर बाद में बोला कि तुम कहाँ से अकेले आए हो, उनको लगा मैं घर छोड़ के आई हूँ। तो मैंने बोला घर पे फोन करके देखो आप। मैं बोली मैं घर घर छोड़ के नहीं आई हूँ, मैं दर्शन के लिए आई हूँ बस। तो फिर बाद में मेरी पूरी इंक्वायरी की है उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने मेरा नंबर वगैरह सब नोट किया, घर से बात करी। फिर घर के लोग उनसे बात करे कि ये आई है दर्शन के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तब मुझे उन्होंने जगह दी है रहने के लिए। फिर मैं बहुत रोने लगी कि ये रात में अभी मैं किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ। बाबा तुम ही कर लो, कुछ भी जो भी है करना तुम ही करो, नहीं तो मैं यहीं पे बैठ के रोते रहूंगी। फिर फर्स्ट टाइम था ना, मैं घर छोड़ के निकल आई थी अकेली। और कभी पता नहीं था कि बाहर का कैसा है क्या नहीं। फिर तब मैंने बाबा से बहुत रिक्वेस्ट करी। फिर दूसरे दिन मुझे रहने को तो मिल गया, वहां पे मैं रह ली। फिर दूसरे दिन दर्शन करने जाना था। तो वहां पे बोले कि 5 बजे जाना पड़ता, 6 बजे जाना पड़ता, 7 बजे आरती रहती। मैं बोली ठीक है। मैं तो 4 बजे उठ गई। 4 बजे उठ के फिर वो रास्ता पता नहीं था, वो बोले थे कि यहाँ से सीधा सीधा रास्ता है, क्रॉस करके जाना। तो मैं 4 बजे बाबा के पास चली गई अरे वाह। दर्शन करने के लिए, फर्स्ट टाइम। कुछ मुझे डर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा।
अंधेरा है क्या है, कुछ कुछ समझ में नहीं आया, मेरी धुन में चल गई, बाबा ने जैसे बुलाया वैसे ले ली। फिर तब से मेरा आना जाना शुरू हो गया। फिर मेरे को अभी 2003 से और अभी 18 साल 18 19 साल हो रहे समझो। तब से बाबा बाबा का पहले लगता था कि ये क्या है बाबा, मतलब चलो देख के तो आएंगे ऐसा बोल के आती थी जाती थी, पर समझ भी नहीं आता था कि बाबा के पास कैसे जाओ और इतना नजदीक कैसे जाओ, समझ भी नहीं आ रहा था कि, पर बाबा ने बराबर से मुझे खींचते चले, मतलब लेते आते, और कभी भी मेरे मन में आए तो मैं बाबा के पास ही आती हूँ, किधर नहीं जाती हूँ। अभी बाबा के सिवाय कोई भी वजह मतलब नहीं, बाबा हर दम हर साथ में मेरे साथ रहते। और मेरा एक एक्सपीरियंस था, जब मेरे पापा की अभी-अभी डेथ हो गई है। मैं मेरे फैमिली हम 4 ही लोग रहते थे। 2 बहन की शादी हो गई और मम्मी भी मेरी गुज़र गई और पापा अभी-अभी गुज़र गए। पापा और मैं ही रहते थे हम दोनों भी। फिर पापा को ना डायलिसिस डॉक्टर ने 2 साल पहले बोला था कि इनको डायलिसिस करना पड़ता, और मेरे पापा का क्रिएटिन 6 7 के 10 के ऊपर रहता था कभी भी। फिर मैं बोली बाबा तुम कुछ भी करो, तुम्हारे ही भरोसे पे है, जो भी करना है मेरे बाबा का, क्योंकि मैं बहुत डरती थी। कि कैसा होगा क्या नहीं, मैं तो देख नहीं पाऊंगी, हर दम मेरे मुंह में बाबा 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 का ही नाम लेती थी। मैं बोलती थी बाबा जो भी करना है तुम करो, क्योंकि वो देखे नहीं जाता था। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको आज करवाना है डायलिसिस, तो मैं सिर्फ बाबा को याद करती थी कि बाबा प्लीज बाबा कुछ भी करो। बाबा को 2 साल में 3 3 महीने में एडमिट करवाना पड़ता था, और मुझे ना बेड नंबर 7 ही मिलता था, कभी भी जाओ मुझे बाबा का बेड नंबर, मेरे पापा को जब एडमिट करते थे तो मेरे को यही नंबर मिलता था कि 7 बेड। मैं बोली बाबा ये तेरी कृपा होगी, 7 नंबर क्यों देता है? तो मतलब जब भी बेड में सिर्फ बेड को देखती थी। फिर बाबा को मैंने जब बोला कि बाबा तुम कितने दिन तक ऐसे रखने वाले हो उनको, इतनी क्यों परेशानी में रखते हो? तो कभी बाबा मतलब बस ऐसा लगता था कि इनका देख के बाबा चले जाना, ऐसा मन में विचार रहा था। तो 2 साल पहले फिर बाबा एकदम से मेरे पापा 3 दिन तक पूरे लेटे रहे थे, पूरे, ना आँख खुली थी, ना बात करी थी। तब मैं बाबा को इतनी मतलब ये कर रही थी कि बाबा तुम कब मतलब इनको लेके तो जा रहे हैं या क्या कर रहे, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब 3 दिन से उन्होंने आँख खोली है, ना कुछ भी नहीं खोला है। जो भी करना है मैं सिर्फ बाबा का याद करती थी, और मैंने बाबा का वो जो ये था अपना, बाबा से लाई थी मैंने टच करके, जो बाबा की अ ये समाधि के ऊपर की अपना फूलों का हार वगैरह कुछ भी था तो मैं बाबा के नीचे रखती थी, इसके नीचे तुम ही करो कुछ भी करना है तो, एक तो लेके जाओ नहीं तो उनको मेरे पास तो ये करो। फिर मैंने बाबा को बहुत बहुत मतलब मिस करती थी कि बाबा ये इतने जल्दी चले जाएंगे तो मेरा कैसा होगा। फिर 2 3 दिन के बाद मेरे पिताजी एकदम से उठ गए, अरे वाह। पूरे मतलब होश में ही आ गए। फिर मैंने बाबा को इतना बोला कि बाबा थैंक्स, मुझे जो भी कुछ भी किया है आपने वो तुम ही कर रहे हो सब, सब हर दम हर क्षण में मेरे साथ हो। तब से बाबा ने कभी भी मेरे पिताजी का कभी भी ये 2 साल में कभी भी डायलिसिस नहीं होने दिया, कभी भी नहीं। फिर बाद में बाबा जब 2 साल में अच्छी पप्पा चलते थे, फिरते थे, मस्त उठ के चलते थे, 2 साल तक रहे। फिर लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि इनको आप कुछ भी नहीं कर सकते, डायलिसिस के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। तब मैंने बाबा को बोला कि बाबा क्या करना है? पर बाबा को मैं हर शाम में आरती करती थी, उनके सामने पानी रखती थी, बाबा इनको जो भी करना है तुम ही करो। फिर पापा पापा 2 दिन के मतलब मरने 2000 ये दो लास्ट लास्ट में उन्होंने सिर्फ 4 दिन कॉट पे पड़े थे। तब उन्होंने पापा बोले कि तुम लेके जाओ मुझे गाँव, मुझे मेरा टाइम आ गया है। मैं बोली ठीक है पापा मैं लेके जाती हूँ। फिर पापा को लेके चले गए हम, गाँव में चले गए लेके। फिर वहाँ पे भी सिर्फ बाबा का ही स्मरण होता था। हर टाइम हर क्षण में मेरे पिताजी की बात बैठे तो ऐसा लगता था कि ये मेरे बाबा ही है, सब देख रहे, सब कर रहे। हर हर क्षणों में मेरे साथ बाबा ने मुझे साथ दिए बाबा के टाइम पे। जब मेरे पापा का अंतिम शरीर छोड़ रहे थे, पूरा छोड़ रहे थे, तभी भी बाबा का ही स्मरण और बाबा का ही वहाँ पे मुझे परछाई दिखाई देती थी कि बाबा साथ में है मेरे, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता था वो चले जाते थे वो टाइम पे, जब उनका देह ऊपर जा रहे थे। ऐसा कभी महसूस ही नहीं आया, कभी रोना नहीं आया मुझे, सिर्फ मैं बाबा के भरोसे पे थी कि जो भी करेंगे बाबा करेंगे। फिर बाद में जब पिताजी चले गए तो मुझे उतना कुछ थोड़ा-सा दुःख हुआ, पर मुझे लगा कि सब हर टाइम पे मेरे साथ बाबा है, तो कुछ मुझे इतना टेंशन नहीं है कि जो भी करेंगे, अच्छा ही करेंगे बाबा। अभी अकेली रहती हूँ, अभी भी ऐसा डर नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, हर क्षण में बाबा मेरे साथ होते हैं। और
बाबा का दामन कभी नहीं छोड़ना, यही बाबा से मेरी विनती करती हूँ हर टाइम, हर क्षण में। जो भी देना है बाबा तुम्हारी सेवा दे दो। और बाबा ने इतनी बड़ी कला मेरे आंग में दी है कि वो मेहंदी की है। वो मैं मेहंदी तो बचपन से ही निकालती हूँ, पर ये बाबा की कृपा है। ऐसा कभी भी लगता, मैं जब भी मेहंदी का काम करती हूँ ना, ऐसा कभी नहीं लगता कि वो मैं निकालती हूँ, कभी भी नहीं लगा अभी तक। अभी इतने साल तक मैं निकालती हूँ, आज 18 साल हो रहे, ऐसा लगता है कि ये सब बाबा ही करते हैं मेरे से। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं एक निमित्त मात्र हूँ। जो भी है मेरे आज हाथ में कला। और बाबा के समाधि के सामने जो झाड़ है वहां पे अपन बैठते हैं, इसके टेबल है जो देखो वहां पे, तो वहां पे सिर्फ बाबू वो मेहंदी के ही झाड़ है पूरे वहां से। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये बाबा की कृपा है मेरी, जो भी कुछ भी है, जो भी जितना भी दिया है बाबा ने दिया है। और बाबा का बहुत कुछ है। और मेरा एक और एक्सपीरियंस है, मेरा डॉगी था, मेरा डॉगी चले गया था 3 दिन गांव में घूम गया था। फिर मैं ऐसा ही बोलती थी कि ये क्यों भेजा है बाबा तुमने, इसका कितना करना पड़ता, मेरा काम मैं पिताजी करूँ, पिताजी का करूँ, इसका करूँ, किसका किसका करूँ, ये जाना चाहिए, मैं इसको छोड़ देती। फिर 2 महीने तक मेरा पास डॉगी रहा। फिर मैंने गांव गांव पे चली गई, तो उस टाइम पे कैसा हो गया, वो चले गया 3 दिन मेरे पिताजी जाने से पहले। फिर मैं बहुत रोने लगी कि क्यों मैंने उसको ऐसा बोलती रही, कि इसलिए वो चला गया। फिर जिस दिन मैं उसको 8 तारीख को लेने गई, पूरे गांव मैंने उसको ढूंढा है, पूरा गांव, पूरा खेत वत सब ढूंढी ढूंढी। फिर बाबा को मैंने रिक्वेस्ट करी, बाबा प्लीज उसको मुझे लाके देना, मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तब मुझे आधे घंटे में फोन आया कि तुम्हारा डॉगी लेके जाओ। अरे वाह। फिर हाँ, वो मतलब मैं इतनी खुशी से मतलब उसको लेके आई। तब से मेरे पास, मैंने उसको कभी बाहर छोड़ा नहीं, वो बाबा की देन है, उसको उसको मेरे पास ही रखा फिर बाद में। और इतना अच्छा मतलब बाबा का एक्सपीरियंस है मुझे। अभी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जो भी करेंगे, जो भी रहा है, बाबा की मर्जी से है, चलेगा जो भी है। वो डॉगी पास में है कि करीब में है? हाँ है, हाँ है दिखाइए मेरे पास। दिखाइए शेरू, हमको। शेरू इधर आओ, शेरू इधर आ, ये देखो जय बाबा। शेरू, आजा, आजा इधर आजा, आजा, चल, आजा आजा, कम कम। वो आरती के टाइम पे मेरे साथ ही रहता है, आरती के टाइम 7 बजे, कभी कभी जो भी मैंने आरती देखा के। है कि हम इंसानों से ज्यादा, जिसको हम ये जानवर कहते हैं ना, हाँ, वो ज्यादा बाबा के पर ये तीन करीब दिन होते चले हैं। गया था ना, तो मुझे बहुत रोना आ गया था। मैं बोली इसको क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, कि ऐसा क्या है इसमें, मतलब मैं ऐसा उसको ये कर रही थी कि मतलब कभी मैंने उसको यही किया नहीं, मतलब लिया ही नहीं था मैंने उसको कभी, 3 दिन तो मैंने लिया ही नहीं था। जब भी फिर बाबा को मैंने बोला कि बाबा तुम कुछ भी करो, इसको लाके दे दो, क्योंकि पप्पा भी मेरे जा रहे थे ऊपर वो टाइम पे, पप्पा मेरे बेड पे थे और ये बाहर चले गया था। मेरा मन पूरा इसमें, मेरे पापा के इसमें नहीं था वो टाइम पे, पूरा इसमें ये कहाँ गया, कहाँ है, कहाँ पर है। पूरा मैं 3 दिन है ना पूरे गांव घूमने लगी पापा को छोड़ के बेड पे। पापा के पास कोई भी नहीं था, मैं ही सब करती थी पापा का सब। बाबा की कृपा से मैंने किया है अभी तक, जो भी किया है मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ मेरा है ना बस शरीर मात्र है, बाकी कुछ नहीं। और सहवास का टाइम पे मुझे सहवास पता नहीं था, इस किसी ने मुझे, आशीष दादा ने बोला था नागपुर से हो। फिर मैंने फर्स्ट टाइम 2018 में मैंने ये करी सहवास, फर्स्ट सहवास। जिस दिन वो 7 दिन में बाबा ऐसे पेड़ में दिखते थे, किस में दिखते थे, तो मैं बोलती थी कि सबको दिखते ही तुम, मुझे क्यों नहीं दिखते हो तुम, मुझे क्यों नहीं दिखते, क्यों, क्या हम्म। हुआ, मतलब मैं कुछ कमी हो क्या कहीं पे, सबको दिखते तुम, ऐसा क्यों बाबा। फिर वो 7 दिन जब मैंने, बोलिए बोलिए। जानिस। हाँ जी। 7 दिन में जो मैंने, हाँ 7 दिन में जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि हर क्षण में बाबा है, न किसी की याद आई, न किसी के कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। सब ऐसा लगता था कि सब जो हो रहा है बाबा के साथ साथ में हो रहा है। फिर जो हमारे मंडली हॉल में एक मीटिंग रहती, वो तब सब पूछते कि तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ, क्या अनुभव है।
तो अनुभव के लिए शब्द ही नहीं थे। बाबा हर टाइम अपने साथ में थे वहां पे, तो क्या बताएंगे अपन वो टाइम पे। तो फिर बाद में जिस दिन सहवास खत्म हो गया, सब हो गया, तो मैं ऐसे ऊपर देखने लगी, ऐसे देखने लगी, तब मेरे को बाबा दिखे थे इसमें, आकाश में बाबा दिखे थे मुझे। अरे वाह। तब मैं बोली कि बाबा हाँ, तू अभी मुझे दिखा है, तो तब मैं थोड़ा सा खुश हो गई। और फिर मेरा अभी फिर मेरे काम जो रहते हैं मेन के, कभी अभी तक ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये मैं करती हूँ, कभी नहीं लगा। हम्म। ये बाबा बाबा हाथ चलाते रहते, मेरा हाथ चलाते रहते। मैं कितने लोगों को भी निकालू, कोई भी नहीं बैठेगा 14-13 घंटे 15 घंटे, कोई भी नहीं बैठेगा। मैं कैसे बैठ सकती हूँ? क्योंकि ये बाबा की कृपा है, ये सब बाबा ही चलाते हैं मेरे को हर दम। और अभी मेरा मेरा एक ये हो गया इसका, मेरा, हाँ, हमीरपुर का दर्शन। हमीरपुर का दर्शन मैं बोलती हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि हमीरपुर जाना है। हमीरपुर सुना था, मैं सिर्फ एक फोटो में देखती थी कि ये झोपड़ी है, बस बस मुझे अच्छा लगता था, मैं देखती रहती थी। फिर बाद में मैंने वो झोपड़ी को देखते देखते फिर एक दिन ऐसे ही वो चौधरी बोल के है हमारे सहवास में, तो उसको मैंने बोला कि वो एक प्रोग्राम था अभी इसका, किसका, पंढरपुर में। तो मैंने उसको बोला कि तू क्यों नहीं बताया, मुझे आना था वो टाइम पे प्रोग्राम पे। तो मैं 2 दिन से थोड़ा परेशान हो रही कि मैं गई नहीं गई नहीं गई नहीं। फिर उसने मुझे लगे फोन किया, एक अंकिता उसकी वाइफ ने बताया कि अरे मैं हमीरपुर में प्रोग्राम है और तू आ सकती है क्या। ना टिकट था ना कुछ था, कुछ पता ही नहीं था ना कि अभी कैसे जाना है क्या नहीं, हमकी यूपी में जाना है। तो फिर मैंने बाद में एक जन से वो बोला कि मैं अमरावती को मैंने फोन किया, खन्ना दीदी को। उसको बोली कि अमरावती से कोई जा रहा है क्या, कोई निगम को। हाँ, फिर उन्होंने बोले कि हाँ है कोई जाने वाला है, तो विजय आड़े का नंबर दिया मुझे। फिर मैंने उसको कॉल किया, मैं बोली सीट है क्या, क्योंकि सीट सब पूरे बुक थे, एक जन का कैंसिल हो गया वो टाइम। फिर मेरा नंबर लग गया उसमें कैसे भी। फिर मैं, शाबाश। हाँ। हाँ, फिर मेरा नंबर लग गया। अभी मैं मेरी धुन गई कि ये का मतलब चल रहा है, अभी चलो जाना तो है ही। मैं सब कैंसिल करी, सब सब मेरा, मैं जिस काम में थी सब पूरा कैंसिल करी। फटक से 2 दिन में मेरी पैकिंग हो गई। फिर मैं 2 दिन में निकली। फिर मेरी शाम की गाड़ी निकल गई, शाम की। फिर मुझे जाना था अकोला, अकोला से फिर मैं गई रात में नागपुर, नागपुर से फिर मैंने 1 बजे की गाड़ी वो पकड़ी, जैसे मेरा टिकट था अकोले से। फिर वहां से चली गई मैं अमरावती वाले लोगों के साथ, हमीरपुर गई। फिर हमीरपुर जाने के बाद वहां का जो प्रेम, वहां का जो मतलब वो हम्म। कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं। वो 4 धाम ही है अपने मेरे लिए तो। फिर जहाँ पे 8 दिन मैंने गुजारा वो टाइम पे, वहां पे एक दर्शन मेरा ऐसा हुआ कि ये बाबा का मतलब दिल से मतलब ऐसा लगा कि ये वही का है सेम, कुछ फर्क नहीं है वहां पे। जो नगर में समाधि का और यहाँ पे दर्शन का कुछ भी फर्क नहीं, ऐसा महसूस हुआ कि ये बाबा दोनों भी सेम है। वहां भी हम्म। अच्छे, वहां भी वही है और यहीं पे यही है। बहुत अच्छा लगा वहां पे भी। और वहां से फिर जाने आने के बाद अभी भी ऐसा लगता है कि बाबा ने कभी अब मेरा दाम मतलब जो भी मैंने दामन जितना पकड़ा हुआ है, बाबा ने कभी छोड़ना नहीं मुझे, बस लास्ट तक। आप कुछ गाते भी है? हाँ, गाती हूँ, मेरा गाना है। ये गाइए गाइए। मैं गाती हूँ। ओ, मैंने तुझे देखा है बागों में बहार में, मैंने तुझे देखा है कलियों के रंगों में, फूलों के रंगों में, कलियों के रंगों में, फूलों के हार में। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है बागों में बहार में, मैंने तुम्हें देखा है। मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर में है। मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर में। मेहर बाबा, मेहर में। मेहर बाबा, मेहर में। मेहर बाबा, मेहर में। मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर में।
अवतार वीर बाबा की जय। किसी से कुछ सवाल पूछना है आम्रपाली से? पूछे, अब भी वक्त है। आम्रपाली, आपको अभी दृढ़ विश्वास हो गया कि बाबा ही ईश्वर है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं किसको भी बोलती हूँ, मुझे हर जन बोलता है कि ये बाबा बाबा क्या करती है तू, मुझे पूछते हैं जितने भी मेरे इस पे मैं बाबा का स्टेटस रखती हूँ, तो हर जन मुझे बोलता है कि जय मेहर बाबा। मैं बोली तुम्हारे मुंह से बाबा का नाम तो आता है, तो मुझे बोलते कि ये कौन है, मैं बोलती ये ईश्वर है, ये सबसे हाईएस्ट ऑफ द हाई लेवल से, मतलब साईं बाबा से भी आगे, मतलब ऐसा उनको बोलना पड़ता है। इधर के लोगों को इतना समझता नहीं कि बाबा बोले तो वो सब दूसरे बाबा के जैसे समझते हैं। तो मैं इतना ही बोलती हूँ कि ये ईश्वर है, और पूरा विश्वास है कि ये बाबा बाबा ही ईश्वर है, बाकी कोई भी कुछ भी नहीं है इनके सामने। शाबाश, आप सही रास्ते पे आ गए हैं। और हाँ, एक मधुसूदन के और मुझे भजन में एक पंक्ति थी, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। मधुसूदन बाबा को कहते हैं कि हाँ, अब तक तो निभाया है, हमारी नैया कैसे भी हिल मिल के अब तक यहाँ तक आ गई है, आगे भी निभा लेना। सो वैसे ही आपको भी बाबा आखिर तक हमेशा हमेशा वो आपको ज्यादा अपने पास रखेंगे। आपका सिर्फ काम है उनकी दामन पकड़ के रखना, उनकी दामन छूट नहीं जाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और मेरा कुछ भी? फर्स्ट टाइम था। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम था ये सब बोलने का, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ना ना ज्यादा ना ना, ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट, ये जो ये जो हम लोग का मीटिंग्स है ना, ये एक परिवार है। उसमें हर किस्म के लोग बैठे होते हैं, और हम सब एक ही मिट्टी के, एक ही ईश्वर के सब बच्चे हैं। तो उसमें कोई भी झिझक करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे में कोई कोई लोग बहुत कंजूस है, जैसे कि ये एक फरहाद करके है, वो कभी कुछ बोलते ही नहीं है। जय बाबा फरहाद, देखो वो बेशर्म की तरह हंसते रहता है। तो मैं एक बार आई थी, पर मुझे ना वो एड्रेस नहीं पता चलता, ग्रैंड रोड पे है ना अपना ये जी हाँ, जी हाँ। बाबा का सेंटर। हाँ, मैं एक बार आई थी, मैं 1 साल मुंबई रही थी। अरे मैं वाह। रहती थी हाँ चर्नी हाँ, रोड में। तो हाँ, आपने देखा चर्नी है रोड में। हमारे मुंबई का सेंटर, हाँ, देखा है? हाँ, हाँ, देखा है, देखा है। पर बाहर से जी, ही देखा है, बंद था तुम्हारा सेंटर वो टाइम पे मैं जब आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 साल थी मैं वहां पर। हाँ, फिर बाद में कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर मैं नांदेड़ आ गई पापा के लिए, हाँ फिर इधर ही हाँ, रही। हाँ, नेक्स्ट टाइम कभी आए तो जरूर आ जाना सेंटर पे। मैं आ जाऊंगी, आ हाँ, जाऊंगी, आ जाऊंगी। चाय तो जरूर हम मुफ्त में पिला देंगे आपको। नहीं, नहीं, आ जाऊंगी वो टाइम। मजा आ गई आपसे बातें करके। हाँ, बाबा आपको हमेशा हमेशा के लिए खुश रखे। थैंक यू। कोई भी परिस्थिति में होए, बस बाबा को याद करते रहिए, और वो सब संभाल लेते हैं, वो सब संभाल लेते हैं। ये मेरे खुद के अनुभव से एक तरह का दृढ़ विश्वास है। इट इज माय फर्म बिलीफ कि हम तो सिर्फ पे पे करते रहते हैं, लेकिन असली संभालने वाले हमको वही है। उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जब भी हम ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं तब भी यही कहते हैं कि बाबा आप आ जाइए और ये मीटिंग को अभी आपकी मर्जी से संभालिए। और फिर उसमें एक अनोखे तरह की रौनक आ जाती है।
जैसे कि आप आ गए, बातें सुनने को मिली। अब पता नहीं आपकी बातें सुन के किसके मन में कौन सी प्रेरणा जागी, वो तो वो ही जाने और बाबा जाने। हमारा काम यही है कि आपस में शेयर करना कि भाई मेरे दुख में बाबा ने ये मदद की, मेरे सुख में बाबा ने ये किया वो किया। तो बस मेरे तो साथ हमेशा हर दम बाबा रहते हैं, जी हर दम जी, मेरे साथ बाबा ही, मुझे अनुभव होता है, हर रोज होता है, हर रोज, हर क्षण में होता है। शाबाश, आप बहुत ही भाग्यवान हैं। यू वेरी लकी। ये जो एक गिफ्ट है ना, ये बख्शिश जो है, बहुत लोगों को नहीं मिलती है। लोग फांफे मार के मर जाते हैं, लेकिन उनको ये बख्शिश नहीं मिलती है। और आपको ये जो दे दी है बाबा ने, ये बख्शिश, उसको बड़े प्रेम से संभाल के रखना। अपने दिलो जान से उन पे हमेशा हमेशा के लिए प्रेम रखना। मेरी मदर हमेशा इतना ही कहती थी कि ये जो अपना भगवान है मेहर बाबा, सिर्फ प्रेम का भूखा है। ही इज हंग्री फॉर लव। उनको और कुछ नहीं चाहिए। तुम भले 500 रुपये का हार पहनाओ या 5 पैसे के फूल रखो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना ही देखना चाहते हैं कि ये बंदा मुझे कितना प्रेम करता है। एरस जसा वाला ने कभी बहुत अच्छी तरह से बोला था, हम लोग कहते हैं ना कि बाबा टेक्स केयर ऑफ हिज लवर्स, तो एरस ने उसमें करेक्शन करते हुए कहा कि वो, किसी ने कहा कि बाबा अपने प्रेमियों के दीवाने हैं, ऐसे कुछ किसी ने कहा था। तो एरस ने कहा कि नहीं, प्रेमियों के दीवाने नहीं है, उनके प्रेम के दीवाने हैं। उनका जितना प्रेम उनके साथ है, उतना ही वो भी अपनी ग्रेस, जो भी कुछ कृपा वगैरह उन पे रखते हैं। और ये मैंने अक्सर देखा है कि कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि हमसे ये काम होगा नहीं होगा, फिर फांफे मारते हैं, फिर सब करने के बाद उन पे छोड़ देते हैं, तो काम फटाक से हो जाता है। और हमें ज्यादा फिलॉसफी या प्रवचन करने के बजाय उनका नाम स्मरण करते रहना चाहिए। ये मेरी खुद की राय है। हर एक के रास्ते अलग अलग होते हैं। कई नामदेव सोलापुरे के एक वो परवरदिगारा पे गजल उन्होंने लिखी थी, सॉरी, उन्होंने गाई थी। उसमें एक पंक्ति है कि हर एक कदम पर तेरी नजर है, सारे दिलों की तुझको खबर है। हम जब एक एक स्टेप लेते हैं, एक एक हर एक कदम, जब हम एक एक कदम लेते हैं, उस पे भी उनकी नजर है और सारे दिलों की उनको खबर है। ये बहुत टाइम मैंने यहाँ पे बताया था, लेकिन ये स्टोरी आज वापस रिपीट करता हूँ। एक समय ये मेहराजाद के मंडली हॉल में बाबा बैठे थे, वो जहाँ पे उनकी, वो नहीं कि वो उनकी गादी, उनका सीट सोफा जो रखा है, वहाँ पे बाबा बैठे थे। और
ऐसे ही सादे लोगों की महफिल जमी थी। कोई गा रहा था, कोई क्या कर रहा था। उसमें बेचारी एक लेडी, एक औरत के पास बहुत छोटा बच्चा था और वो बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी। जब भी छोड़ती थी वो भाग जाता था, फिर वो भाग के पकड़ के लेके आती थी, ऐसे वैसे। तो बाबा ने ये 2-3 टाइम देखा, फिर उन्होंने उस औरत को कहा कि बच्चे को छोड़ दी, मेरी नजर है इस पे। तो वो लेडी ने वो बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा खेलते खेलते बाबा के चरणों तक गया, बाबा के चरणों छुए। फिर आगे चलते 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 सबकी नजर बाबा पे है, कोई वो बच्चे को देख नहीं रहा था। वैसे करते करते वो जो थ्रेशोल्ड है, जो उम्र है, वो मेराजाद में आपको मालूम होगा कि हम जब जाते हैं तो वो काफी ऊंची हाइट पे है, वो उनका जो उम्र है। तो वहां तक बच्चा पहुंच गया। जैसे ही वहां तक पहुंचा कि बाबा ने चुटकी बजा के उसकी माँ को कहा कि जा उसको पकड़, नहीं तो वो गिर जाएगा यहां से। दिस इज द मीनिंग ऑफ उनकी नजर। उसकी माँ तक को ये मालूम नहीं था। वो सब ये बाबा के ऊपर ध्यान और जो गाना बजाना चल रहा था उसमें लीन हो गई थी। उसको ध्यान नहीं रहा कि ये बच्चे का क्या हो रहा है। लेकिन जब बाबा ने कहा कि मेरी नजर है उस पे, तो फटाक से उसको पकड़ के बचा लिया। तो वैसे ही हम ये महसूस नहीं करते हैं, वी डोंट रियलाइज कि बाबा कितनी दफे हमें संभाल लेते हैं। छोटी छोटी चीजें हम, अभी मैं बाइक पे मुंबई में जाते आता रहता हूं, तो कितने वक्त छोटी मोटी दुर्घटना होने से पहले मुझे वो अलर्ट करते हैं कि भाई ये संभाल ले, ब्रेक मार ले, ये कर ले, वो कर ले। और कभी कभी जब हमारे से गलती हो जाती है तो भी वो उसमें से हमको बचा लेते हैं, क्योंकि जब हम उनके हो जाते हैं तो वो फिर सारी जिम्मेवारी उन पे ले लेते हैं। आज के दिन की ही मैं बात कर रहा हूं। मुझे दोपहर के 2 बजे अपनी लीलावती हॉस्पिटल में मेरे भाई के कुछ ये किडनी के सोनोग्राफी के लिए ही जाना था। तो थोड़ा सा टेंशन था। फिर मैं बांद्रा स्टेशन पे उतर के रिक्शा में बैठा। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया नानावती हॉस्पिटल ले लो। तो इसने बेचारे ने घुमा के वैसे जा रहा था। मैं भी देख रहा था कि ये कुछ नए रास्ते से जा रहा है, क्या है। फिर मैंने नोटिस किया कि वो एक ब्राह्मण थे, उनकी चोटली थी, यहाँ पे ऐसे चोटी थी। तो मैंने पूछा कि क्या आप ब्राह्मण हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ। बस ये पूछने के 2 मिनट बाद उन्होंने रिक्शा साइड में कर ली और मुझे पूछते हैं कि साहब आपको लीलावती जाना है या नानावती? तब मेरी ट्यूबलाइट चमकी। मैं बोला नहीं नहीं, मुझे तो लीलावती जाना है। तो बोला आपने मुझे नानावती बोल दिया। मैं बोला मेरी गलती हो गई। तो उस आदमी ने इतना सुंदर जवाब दिया। उस आदमी ने कहा कि मेरे अंतरात्मा कह रही है कि नहीं, इसको लीलावती जाना है।
इसलिए मैंने गाड़ी रुक के आपसे ये पूछ लिया। फिर तो उसके बाद वो पूरी सफर हम लोग बस यही ईश्वर की बातें करते रहे, और जब उतरने का वक्त आया तो बहुत ही खुशी खुशी और आनंद से वो पूरा जो टेंशन था सर पे, वो सब गायब हो गया। और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि अब तुझे कोई फिक्र चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ है। अगर वो साथ नहीं देते तो मैं कोई भलती हॉस्पिटल पे पहुंच जाता और टाइम वेस्ट हो जाता था। तो ये तो आज सुबह की बात है, दिन की बात है। वैसे कई ये क्लास अमर तिथि में बस को लेके आ रहे थे हम लोग, तो 5 दिन की ट्रिप आखिर की थी, तो उसमें सब लोग बैठ के, बहुत लोग नहीं थे, कुछ 13-15 लोग थे, तो इतना रास्ता सरल मिल गया, फट 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 गाड़ी, कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कुछ नहीं, ऐसे बस फटाफट फटाफट आते रहे। चाय नाश्ता किया, फिर आगे बढ़े, तो भी अच्छा, हाईवे भी एकदम खाली मिला, सब खाली 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 खाली। चेंबूर पहुंचे, ये मुंबई के जो एक चेंबूर करके इलाका है, वहां पे ट्रैफिक जाम मिला, और लोग ऐसे ही बस में बैठ के गाने गाते थे। तो मेरे मन में आ गया कि क्यों ना हम उस्ताद धन्यवाद, जो गाना है सब लोग गाते हैं, उस्ताद धन्यवाद, बाबा धन्यवाद, ये वो गाना गाया। तो किसी ने, अगल बगल जो बैठे थे उसमें से किसी ने कहा कि ये तुम क्यों धन्यवाद कर रहे हो, इधर ट्रैफिक में जाम हुए इसलिए धन्यवाद। तब मेरे मुंह से निकल गया कि यहां तक हमको इतनी संभाल के लाए हैं, उसके लिए तो हमने धन्यवाद किया ही नहीं उनको। और अभी जब उनकी याद और उनको एक थैंक यू कहने के लिए मैंने ये धन्यवाद, और आप मानिए ना मानिए, जैसे ही ये धन्यवाद का गाना खत्म हुआ तो ट्रैफिक हट गई और हम लोग फटाफट फटाफट आगे निकल के बराबर टाइम से यहाँ बॉम्बे पहुंच गए थे। तो कहने की मतलब यही है कि बहुत बारीकी से बाबा हम पे नजर रखते हैं, जरूर रखते हैं, और जब भी उनको लगे कि ये बंदा अभी गिरने वाला है तो खींच के निकाल लेते हैं। ये मीटिंग शुरू होते समय मैं ये सेंटर की महत्वता के बारे में बात कर रहा था। वो वापस दोहराता हूं कि हम बाबा प्रेमियों के लिए समाधि सबसे विशेष है, इट इज ऑफ द utmost importance। मेहराबाद, मेहराजाद, और फिर ये जैसे आपने बताया हमीरपुर और कई जगह हैं। लेकिन जब हम बॉम्बे में आके बसते हैं, हमारे घर कारोबार सब कुछ यहीं पे है, तो हमारे लिए सबसे महत्व का है ये मुंबई का सेंटर। अब लोग इतने ये हो गए हैं कि बस ऑनलाइन ऑनलाइन सब चल रहा है, तो क्यों जाने की जरूरत है। संडे की मीटिंग में भी लोग आने के कम हो गए हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी। मेरे कहने की मतलब ये है कि ये जो सेंटर है कई सालों से चल रहा है, यहाँ पे रोज प्रेयर आरती रोजाना होते रहती है।
आपके घर और आपके मन में भी बाबा है, आपको घर में भी बाबा मिल जाएंगे। मगर मैं पर्सनली उतनी लेवल पे नहीं पहुंचा हूं कि जहां भी जाऊं मुझे बाबा दिखाई दे, और ये वो सब मुझे नहीं, मुझसे नहीं होता है। तो मैं हमेशा ये सेंटर पे आने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहाँ की जो वातावरण है, द वाइब्रेशंस इतने पवित्र है कि अंदर पैर रखते ही तुम्हें एक तरह का सुकून आता है। यू फील कि तुम्हारे जितने भी बाहर के लफड़े तनाव जो भी कुछ है वो सब बाहर छूट जाते हैं, एंड यू फील कंप्लीटली एट ईज। और क्योंकि ये एक बाबा की अनोखी चीज है कि सेंटर पे या रहो कि कहीं भी मेहराबाद में रहो, जहां भी हो, हमेशा आप और ईश्वर दोनों के बीच और कोई नहीं होता है। न तो कोई पंडित वो पूजा पाठ करने वाला, न तो कोई ये वो कर्मकांड, कुछ नहीं। मैंने ये अभी भी देख रहा हूँ सेंटर पे, ये एक है हमारे टेम्पटन साहब, वो ऐसे ही बैठ के बस बाबा के ऊपर ध्यान लगा के बैठते हैं। तो हर एक को अपनी अपनी जो भी कुछ, हाँ, जो मैं इम्पोर्टेंस कहने वाला था उसकी कहानी ऐसी है। ये लंदन के किसी एक घर की कहानी है। उस घर में पारसी परिवार रहते थे और उनके वहाँ एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था। छोटा यानी तकरीबन 2-3 साल का होगा, ऐसे वो बोल रहा था। तो वो उनके माता पिता ने देखा कि ये बच्चा जब भी कारपेट पे, उनके घरों में कारपेट होते हैं नीचे फ्लोर पे, तो जब भी कारपेट पे खेलने लगता है तो कोई अलग भाषा में कुछ बातें करने लग जाता है। उनको लगा कि ये कुछ न कुछ होगा, अभी पता नहीं क्या है बच्चे का, यू नो हाउ चिल्ड्रन आर। तो कुछ खास ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन उनके घर में एक कोई बड़े विद्वान स्कॉलर आए थे, और उन्होंने जब ये बच्चे को देखा और सुना कि ये क्या बोल रहा है, तो उन्होंने वो फैमिली माता पिता से पूछा कि क्या तुमको मालूम है ये बच्चा क्या बोल रहा है? बोला नहीं, हमें तो नहीं मालूम है, ये रोज ये। तब उन्होंने बताया कि ये तो ईरान में सबसे महान और पवित्र प्रेयर जो होती है, ये बच्चा वो बोल रहा है। तो वो उसके पेरेंट्स एकदम चकित हो गए और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो उस विद्वान ने कहा कि आपके घर में ये जो कारपेट है ये एक पर्शियन कारपेट है, यानी ईरान का बना हुआ कारपेट है। और ईरान में बहुत सालों से ये एक रिवाज है कि वहाँ की महिलाएं, लेडीज, ये कारपेट वीव करते हैं, बनाते हैं हाथों से, मशीन से नहीं, हाथों से। और उस वीविंग करते समय ये अवस्था की प्रेयर बोलते रहते थे। तो उसके जो वाइब्रेशंस जो है वो उस ऊन यानी वूल में कैप्चर हो गए थे। और क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल निर्दोष और इनोसेंट है, वो उसको पकड़ सकता था, और वो वाइब्रेशंस के जरिए वो ये प्रेयर्स वापस यहाँ पे रिसाइट कर रहा था।
ये मैं कहने की मतलब इतनी ही है कि ईश्वर के कई प्रकार के तरीके होते हैं अपने अपने लोगों को याद दिलाने के लिए, प्रेयर कराने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि हजारों पंडित, हजारों स्याने, खुदा की बातें खुदा ही जाने। और हमें ये इतना भरोसा है कि मैं अभी कभी ये नहीं कोई आर्ग्यूमेंट या इसमें नहीं पढ़ता हूं कि ये बाबा ने ऐसा क्यों किया, ने अभी ये वर्ल्ड वॉर हो गई थी तो अभी ऐसा क्यों हुआ, ने उनका काम उनको करने दो, अपना काम आप करते रहो। तो अब थोड़ा ही वक्त बाकी है। मैं चाहता हूं कि जैनिस को कुछ अनाउंसमेंट करना है, वो प्लीज आके अनाउंस कर ले। जैनिस है कि भाग गई? यस अंकल। अरे वाह, आ जाओ मैदान में। जय बाबा। जोर में बोलो, सब बहरे हैं इधर। जय बाबा, am I audible? हाँ, मुट्टे थी। हाँ जी। So I wanted to just announce the Mehrabad Young Adult Sevas details. Slowly and clearly and loudly, please, Janice. Is this okay, Uncle? हाँ, बोल, जोर में बोल। Yes. So, Jai Baba, everybody. I want to share with you all the details about International Mehrabad Young Adult Sevas. ये यंग एडल्ट सहवास के बारे में बोल रही है। So, इस साल Young Adult Sevas जून में होने वाला है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। इस साल की थीम जो है, Being in the Joy of Meher Baba's Presence. वाह। तो लास्ट ईयर हमारी जो थीम थी सहवास की was awareness of Baba's oneness within. So in continuation, now that we are aware कि हमारे अंदर ही बाबा मौजूद है, जो बाबा के साथ हम जो एंजॉय कर सकते हैं उनकी प्रेजेंस जो है, इस थीम के अराउंड इस साल का सहवास होगा। So being in the joy of Baba's presence. So ये सहवास प्रोग्राम कौन अटेंड कर सकते हैं? जो बच्चे 18 इयर्स से लेकर 35 इयर्स के बीच होते हैं, वो लोग अटेंड कर सकते हैं। कहाँ पर कब होगा? तो 4 जनवरी 2023 से लेके 4 जून से लेके 10 जून तक होगा ये। और कहाँ पे जून होगा? महीने में 4 तारीख से 10 तारीख तक। हाँ जी। तो कहाँ पर होगा? सो ये फर्स्ट टाइम है जो ये प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम MPR में होने वाला है, वह पिलग्रिम रिट्रीट में होने वाला है। वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए ये लोग सब वहाँ गए अभी। And this time, this is the first time that Sevas program is called as International Mehrabad Young Adult Sevas. तो इसमें क्या चीजें होती हैं? तो सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं, all everything is around Baba's theme and सब बाबा के लिए ही सब प्रोग्राम्स होते हैं, बाबा की प्रेजेंस फील करते हैं। वर्कशॉप्स होते हैं जिसमें म्यूजिक, डांस, सॉन्ग राइटिंग, पेंटिंग, कभी कभी ड्रामा। सो ये सब चीजें it all revolves around Baba, Meher Baba and the theme. फिर स्पेशल प्रेजेंटेशंस होते हैं जिसमें टॉक्स, वीडियोस होते हैं, और सीनियर बाबा लवर्स आते हैं हमारे साथ, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और यंग बच्चे, बहुत से यंग बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं सहवास, तो उनको गाइड करते हैं। एंड डिस्कशन भी होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें सहवासी पार्ट लेते हैं। सर्टेन बाबा लवर्स, सीनियर बाबा लवर्स आते हैं, वो ग्रुप ये टॉपिक के ऊपर शेयर करते हैं उनके व्यूज, और फिर यही चीज नेक्स्ट डे सहवासी परफॉर्म करते हैं इन अ वे ऑफ अ स्किट, या फिर शेयर करके पोएम या सिंग करके उस पे पूरा प्रेजेंटेशन होता है। फिर मेहर बाबा के बारे में फिल्म्स दिखाते हैं बच्चों को,
और टूर्स भी होती है अपर एंड लोअर मेहराबाद की, और विजिट होती है मेहराजाद। जब एक दिन हम लोग पूरे सब लोग यहाँ मेहराजाद जाते, एंड पाथवे पे हम लोग स्टार्टिंग में उतर जाते हैं, एंड फुल पाथवे पे हम लोग चल के जाते हैं फिर मेहराजाद, बाबा का ही नाम लेके, बाबा की कोई धुन लेके। वो सब लोग कलेक्टिवली बोलते बोलते हम लोग चल के बाबा पे ही ध्यान लगा के मार्च करते हैं टुवर्ड्स मेहराजाद। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल के आजू बाजू में जो भी विलेजर्स होते हैं तो ये धुन सुन के वो भी पार्ट लेते हैं, वो भी जय बाबा बोलते हैं। तो वैसे करते करते हम मेहराजाद जाते हैं, मेहराजाद में भी दर्शन करवाते हैं जो मेन प्लेसेस है बाबा की। मंडली हॉल में भजन होते हैं, टेक्नोशन हिल पे भी लेके जाते हैं, वहाँ का इम्पोर्टेंस बताते हैं। तो ये सब प्रोग्राम्स होते हैं सहवाज के, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम है, स्पेशली यंग बच्चे जो स्टार्ट हुए और यंग बाबा लवर्स जिनको ज्यादा पता नहीं है बाबा के बारे में, तो उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम, इट्स कांस्टेंट कंपेनियन और कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ मेहर बाबा, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं 15 मार्च से। ये लिंक आ जाएगी ट्रस्ट की वेबसाइट पे। दिस इज द ट्रस्ट प्रोग्राम यंग इवेंट्स। तो ट्रस्ट की वेबसाइट पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी 15 मार्च। एंड आई विल रेगुलरली कीप अनाउंसिंग ऑन आवर Zoom platforms as well. एंड प्लीज अगर आपको पता है आपकी फैमिली में आप किसको जानते हैं जो जिनके घर में यंग बच्चे हैं, प्लीज पास ऑन द मैसेज टू बी अ पार्ट। थैंक यू जैनिस। Thank you. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप और आपके परिवार में जितने भी लोग 35 इयर्स के अंदर है उन सबको ये सहवास जरूर अटेंड करना चाहिए। ये एक ऐसी बख्शिश है बाबा की तरफ से कि सब जवान लोगों के दिलों में एक प्रकार की डिवाइन स्पार्क जिसको कहते हैं डिवाइन जोत जो है वो बाबा वहां पे लगा देते हैं। तो आप लोग में से जो भी जा सकते हैं, जिनकी तकदीर अच्छे हैं, नसीब अच्छे हैं, जरूर जाइए। और अब 7 बजने का टाइम हो रहा है, तो बस बाबा से इतनी ही दुआ करते हैं कि हम सभी पे उनकी नजर बनाए रखे हमेशा हमेशा के लिए। जो हम प्रेयर जो बिगिनिंग में करते हैं अनटिल द वेरी एंड, वो वेरी एंड के मतलब यही है कि यही जिंदगी नहीं, ये लाइफ से तो हम कभी चले जाएंगे और फिर शायद वापस जन्म लेके वापस आएंगे, और ये सब ऐसे करते करते द वेरी एंड इज व्हेन वी मर्ज इन हिम, जब हम उनसे एक हो जाएंगे। तब तक बाबा हम सभी को संभाले रखिए, यही आपसे विनती है। जय बाबा। थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले,
तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम अविभाव से रहित हो और तुम गुणान्वित हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भूल में हो और तीनों भूल से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव परोपकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपूर्ण एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात्परी पर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो और मज़्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम यजत अथा एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें
और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का नाम दूरता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार लतनी ये कर खुद रात में फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू हयामू शाद में है बाबा चरण पर तुझ न दरिए सर खुदाना जात दीवा के फतई बे तो मेहरबान तुझे माँ लिखा की कदनो दुआशे भीने आरे भी तुझे धरी ये वह दत्तमारे फतनो होई तूफातू हमो राव में साले बखशे ज्ञान ईजदनु के तुझ पर महात्मा ज्ञानी छने मुख तारे इरफातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सद के साखिया पीद पय मातू हमारी नावत बरदरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेरे बाबा छेनी गे बातू हमारा ना खुदा है मेरे बाबा छेनी गे बातू पूजावे नार लतनी ये कार खुद रात में फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा आओ मेरा प्रभु आरती अपनावो, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में
हिये जलाऊ, प्रेम दीप में हिये जलाऊ, निविड़ अंधेरा मिटता पाऊ, निविड़ अंधेरा मिटता पाऊ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊ, तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, हे करुणा कर लीलाधारी, है करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, खुल नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्माओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। आदि अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।